कृष्ण कन्हैया लाल की। हस्ते गंगाक्षर पुष्पाणि पूरित्वा विष्णु स्मरणम् ओम इदं विष्णोर्विचक्रनेत्रे कानिनदे पदं समूढस्य भागुसुरे स्वाहा भूर्भुवस्व महाविष्णवे नमो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः सर्वजनार्दे गंगाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। हेलो हाय हेलो हरी हेलो रूपम दीपम नैवेद्यं समर्पयामि दीपि प्रज्वाल्य प्रेमिति समुच्चय ज्वालामणि नमो नमः रत्नेश्वरी नमो नमः नीराजनम् हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत क्षोत्राद्वायुष्य प्राणसमुखात् जगनीरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
ऋषिकेन जगमय जन्त देवा स्वामी कर्माणि प्रथमानि आसन्न देहनादं महिमानः सकल जगद्गुरुवे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुमनि पुष्पाणि रात्रोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं भगवान् परमेश्वर क्षमाप्रार्थनापूर्वक मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कृष्णकन्हैया लाल की हेलो हेलो हरि हेलो हेलो पर विराजमान कृष्ण पायसा का एक बार जोर से ताली बजाकर उसका स्वागत एवं अभिवादन करें। मैं निवेदन करूंगा देवी पायसा को कि वो कृष्ण पायसा का स्वागत एवं पूजन करें। बराबर
જય હો નરેન્દ્રભાઈ બરાબર આ કૃષ્ણભાઈ સાના મામા છે ધીરેન્દ્રભાઈ અને નરેન્દ્રભાઈ જોરદાર તાળી જય હો મામીસા પધારો મામીસા બોલા કરીને સન્માન કરશે જોરદાર તાળી જય હો
જોરદાર તાળીથી અભિવાદન કરો. હા, જશોદાબેનનું વિશેષ સન્માન કરવામાં આવે છે. જોરદાર તાળી વડે એનું સ્વાગત કરીએ. એક જરૂરી સૂચના, DJ5CN 0803 એ ગાડી કોઈની હોય તો જરા સાઈડમાં લઈ લેજો. 0803 CN. ચાલો જશોદાબેનનું હાર્દિક સ્વાગત અને અભિવાદન. જય હો. એક તો રહેવા દો ગળા. બેસી જાઓ બધા, બેસી જાઓ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. ભરતભાઈ, हमारे गुजराती में कहावत है, जननी जन को भगत जन. बेसी जाओ. जननी जन को भगत जन का दातार का शूर નહીંતર રેજે માં વાંચણી તારું મત ગુમાવીશ નું. આજે જેટલો હરખ, જેટલી ખુશી અહીંયા બેઠા પછી કૃષ્ણ બાદશાહને થતી હશે એના કરતા પણ વિશેષ આજે મહેન્દ્રસિંહ અને જશોદાબેનને થતી હશે. છોકરો પરીક્ષામાં પાસ થાય, પહેલા નંબરે પાસ થાય, કંઈક સારી નોકરી હોય, સારી ડિગ્રી હોય, ત્યારે મા બાપને તો આનંદ થાય જ. પણ આજે આનંદ એ વાતનો છે કે આજે એની દીકરી આજે રાજપૂત સમાજ ગૌરવનું માન વધારી દીધું છે. અને એમાં આવું સરસ મજાનું ભગીરથ કાર્ય, અને ભગીરથ કાર્યની અંદર ભગવાનની કૃપા, અને ભગવાનની કૃપા એટલા માટે કારણ કે સારું જમીન હોય ને એને સારું વાવેતર થાય. સારું વાવેતર કરવા માટે સારા જમીનની જરૂર પડે. એમ કૃષ્ણ બાદશાહના માતા પિતા જશોદાબેન અને મહેન્દ્રસિંહ, એનો હું વિનંતી કરીશ કે તમે ઉભા થઈને આ બાજુ આગળ ઉભા રહો. આ એ માતા પિતા છે જેટલું મીરા ચરિત્રનું કથા કરવાની જેટલી વધારે ઈચ્છા હતી, આમને મોટે ઉભા રહો. આ એ જ માતા પિતા છે. બેસી જાઓ બધા, બસ બેસી જાઓ.
આ એ જ માતા પિતા છે કે જેના પેટે આવી भगत આવી ભગવાનની ભક્ત आपने किसी को मीरा को देखा मीरा भाई को उबाल जो जसोदा देखा है मैंने भी नहीं देखा लेकिन भागवत कथाकार के नाते में कह सकता हूँ कि अगर लीला होती तो बिल्कुल इनके जैसी होती साहब भक्ति का नशा उतना ही होता है जितना जाम का होता है लेकिन जाम का नशा शाम को पी सुबह उतर गई लेकिन ये जो भक्ति का नशा कभी उतरने वाला नहीं है वो यही प्रार्थना करे कि उसके माता पिता का सम्मान होना चाहिए तो माता पिता का सम्मान करने के लिए मैं विनती करूंगा मरुधर कुंवर और दलपत सिंह देवरा गाड़ी भाई तुम्हारी गाड़ी थी ये बेला हूँ विनती करीश बरोबर મોટી બેન તથા અને નાની બેનની ઈચ્છા થાય કે મારે મને મોટી બેનનું સન્માન કરવું છે તો નમ્રતાને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે હસતા મોઢે જેટલી ચિંતા આને હતી એના કરતા વધારે ચિંતા આને હતી રાત દિવસ મહેનત કરે છે બરાબર नगर के छोकरों के अथवा छोकरी के मारे डॉक्टर थવું मारे एंजीनियर थવું मारे चार्टर्ड एकाउंट थવું मारे विदेश ભણવા જવું આવી ઈચ્છા તો ઘણા સંતાનો રાખે પણ એમાંથી એક ઈચ્છા એવી રાખી છે કૃષ્ણભાઈ સાહેબ કે મારે ભગવાનની કથા કરવી છે આવી ઈચ્છા બહુ ઓછી જોવા મળે અને એ જ કૃષ્ણભાઈ સાહેબ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે તમે 3 દિવસથી આવો છો આજે ત્રીજો દિવસ છે કથામાં પણ આ કથા માટે એટલી મહેનત એટલી દોડધામ એના પરિવાર કરી છે અને એનો હું સાક્ષી છું નાની નાની વાતને મને ફોન આવતો મહેન્દ્રભાઈનો નાની નાની વાતમાં જશોદાબેનનો ફોન આવે મારા જામ કરીએ મારા જામ કરીએ મારા જામ કરીએ આવું કરીએ તો કેમ આ બધું સફળ બનાવવા માટે બેનનો જેટલો હાથ છે એના કરતા પણ વધારે ભાઈનો હાથ છે આપણે કૃષ્ણનો પ્રાર્થના કરીએ કૃષ્ણ આગળ આવ્યો ભાઈ અને ભાઈ બેનનું સન્માન કર્યું તો આવી ગયા મહેન્દ્રસિંહ અને જશોદાબેનનું સન્માન કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ મરુધર કુંવર અને દલપતસિંહ દેવરા પધારો ધન્ય છે આ મા બાપને કે જેને આવી કૃષ્ણ ભાષા જેવી દીકરીનો જન્મ એના ઘરે થયો એવા મોટા ભાગ્ય અને ભાગ્યની સરાહના કરવા માટે દલપતસિંહ દેવરા અને મરુધર કુંવર ત્યાર પછી આ સ્વાગત વિધિ અત્યારે એટલા માટે લેવામાં આવે છે આજે કથાનો છેલ્લો દિવસ છે બધાની પૂર્ણાહુતિ છે હું તમને બોલું અને તમને સંભળાય એટલું નહીં સારું સંભળાય અને જેટલી કરવા સાઉન્ડની આપણી સેવા આપી છે ભજન ગંગા સાઉન્ડ એન્ડ મ્યુઝિકલ ગ્રુપ અને એના ઓનર
સરસ મજાના આપણને જો સંગીતને જ્ઞાન આપે છે गौतम भगवान जी जोरदार ताली से उसका स्वागत करें और भगवान उसको ऐसी शक्ति दे कि ऐसी भगवान का गुणगान गाते रहे और सबको गवाते रहे। उसके बाद मैं विनती करूंगा हमारे सीताराम वैष्णव जी बताओ इतना अच्छा ढोलक बजाते इतना अच्छा ढोलक बजाते थे कि मानो आपको सबको ठिलकने का मन होता लेकिन मेरे को भी यहाँ ऐसे लोग इतना अच्छा ढोलक बजाते हैं। सीताराम वैष्णव जी खूब स्वागत खूब अभिनंदन। भूलचंद प्रजापति हाँ ऑक्टोबर में इतना अच्छा ऑक्टोबर बजाते उसको भी प्रार्थना करके आगे आ जाओ। भूलचंद प्रजापति खूब स्वागत खूब आभार। उसके बाद मैं विनती करूंगा हमारे जनक भाई महाराज जो सुबह शाम हमारी पूजा करवाते हैं ये सब पूरा तो जनक भाई शास्त्री महाराज आगे आ जाओ आगे। खूब आभार खूब धन्यवाद। मारू स्वागत ना हो મારા સ્વાગતની મારી હૃદયની શુભકામના આશીર્વાદ તો કૃષ્ણ સાથે છે હતી અને રહેવાની સ્વાગત આ ભગવાનનો આશીર્વાદ છે એવા ધર્મેશભાઈ પંડ્યા ભાગવતીભાઈનું સ્વાગત મહેન્દ્રભાઈ કરશે ખૂબ ખૂબ અભિવાદન કાબુલના પ્રજાપતિને જાઓ એવા ભાગવતના આચાર્ય बेबी बैसा का स्वागत करेंगे हमारे कृष्णा जी। विक्रम सिंह भाटी कृपया मंच के आगे आ जाइए। महेंद्र सिंह जी उसका स्वागत करेंगे। नरेंद्र सिंह भैया हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। इस कथा को सफल बनाने के लिए सबके स्वागत की सबका आभार व्यक्त किया। ये गोवर्धन पर्वत जो उठा है वो केवल कृष्ण से नहीं उठा था,
सभी वाले अपनी लकड़ी लेकर उस गोवर्धन पर्वत को उठाने में लगे थे। तो ये 3 दिन का जो भी गोवर्धन पर्वत उठा है, इस पर्वत में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। तो एक ताली अपने खुद के लिए बजाइए। बोलो रामचंद्र भगवान की। हमारे रामलला का मंदिर बन रहा है अयोध्या में। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। ऐसे राम जन्म जहां हुआ था, उस मंदिर के निर्माण हेतु हमारे समाज के प्रमुख रतन सिंह चौहान के द्वारा 51,000 का दान दे दिया। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। रतन सिंह भाई को ऐसा लगा कि 51,000 में कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत और करो। तो उसके राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में राम लल्ला का मंदिर निर्माण हेतु और 25,000 रुपये। बोलो जय श्री राम। विक्रम सिंह भाटी, हाँ जय हो। 11,000 रुपया राम मंदिर निर्माण हेतु, जय हो। महेंद्र सिंह जय माता की ओर से पूरे 5100 रुपये राम मंदिर के लिए। चलो तो अभी ज्यादा वक्त लगा रहे, तो हम प्रार्थना करें कृष्ण भाई साहब की मीरा चरित्र की तीसरे दिन की कथा अपनी जो तारों की ज्योत में चंद्र छूटे नहीं, सूरज छूटे नहीं, बादल छायो, रण चढ़े रजपूत छूटे नहीं, दातार छूटे नहीं, मांगन आयो, चंचल नारी की नैन छूटे नहीं, प्रीत छूटे नहीं, प्रीत बतायो, कवि गंग गए सुर सागर, कर्म छूटे नहीं, बहुत लगायो। सबकी ओर से कुछ ना कुछ राम जन्मभूमि राम मंदिर के लिए दान दिया। तो हमारे कृष्ण भाई साहब का एक अंदर से ऐसा नम्र अपील और विनती है कि मेरी तरफ से 11,000 रुपये दान की रकम आई है। पप्पू सिंह जी पुनावली, वीर क्रिएशन, और उसकी ओर से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन 1,21,000 रुपये। जय श्री राम। जय श्री राम। ये समाज में जो कथा का आयोजन किया गया है कृष्णा वैसा द्वारा, इसमें आप 100 रुपए की राशि से 10 रुपए की राशि से जितना भी समर्पण करेंगे उस राम मंदिर निर्माण के लिए पूरी राशि समर्पित की जाएगी। आप अधिक से अधिक दान करें, खुले हाथों से दान करें। सब कुछ राम का ही है, दिया हुआ भी राम का ही है, राम को समर्पण करें। कोई ये नहीं समझे कि मैं 10 कैसे दूं। आप 10 दे रहे हो 10 लाख के बराबर है, और आप 10 लाख दे रहे हो वो भी करोड़ों के बराबर है। उसमें कोई कम नहीं। आपका एक रुपया, आपका एक पैसा मंदिर तक पहुंचेगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद ने RSS ने उठाई हुई है। इसलिए आपका एक रुपया आपका यहाँ पे समर्पित किया
दिया हुआ 1 रुपया भी वहां पहुंचेगा। आप अधिक से अधिक दान करें। आने वाली पीढ़ी जब भी राम मंदिर दर्शन करने वहां जाए तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि मेरे पिताजी ने, मेरे मम्मी ने यहाँ पे समर्पण किया है, आज मैं उनका दर्शन करता हूं। ये मुझे भाव रखेंगे। आप अधिक से अधिक जो आपकी सेवा में आपकी जो दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। बाकी सब कुछ दिया हुआ तो राम का ही है, राम को ही समर्पण करना है। कहीं न कहीं ये पूरा शरीर, ये तन, जो यहाँ पे सब कुछ है वो भी राम को ही समर्पण है। ये उनका दिया हुआ प्राण है जिससे हम यहाँ पे बैठे हैं। आज मधुर वाणी से हम कृष्ण की लीला की और मीरा जी की कथा सुन रहे हैं। ये भी भगवान की कृपा है और उन्हीं की कृपा से जो आपके पास है वो आप जितना दे सके समर्पण करें। आपका एक रुपया राम मंदिर ट्रस्ट में जमा होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। यहाँ का आपका 1 रुपया भी उसी तीर्थ क्षेत्र में जाएगा और लाखों करोड़ों रुपए देने पर भी वहाँ जाएगा। लेकिन आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को यह एहसास हो कि 490 साल तक राजाओं ने, महाराजाओं ने इसके लिए जो युद्ध किया, जो लड़े, जो बलिदान दिया, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, उनके मन में कई इच्छा, मेरे दादाजी, उसके दादाजी, उसके दादाजी, सबके मन में इच्छा थी कि राम मंदिर बने। ये हमारा सौभाग्य है। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे जितने, हमारी इस पेटी में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये आपका, मेरा और पूरी दुनिया का सौभाग्य है कि हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी में वो मंदिर बनेगा और हम उसका दर्शन करेंगे। इसके लिए आप खुले हाथ से जो भी दे सकते हैं जरूर दीजिएगा। आपका एक रुपये की पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर पहुँच जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। सुमेर सिंह राठौर की ओर से 1101 राम मंदिर निर्माण जो दान दिया है, तो ये, और जिस किसी को भी दान राम मंदिर के प्रति देना है वो बाहर कुछ काउंटर ऐसा कुछ है, कुछ लिखो तो एक साथ उसमें सबका अनाउंस कर दे। अभी हमको बता दें, धीरेन्द्र सिंह राठौर 11,000 जोरदार ताली। अब महेंद्र साहब, आप एक कागज ले लो, लिस्ट ले लो, ताकि लेके आप लिख लो। लास्ट में 5.5 बजे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता यहाँ पधारेंगे। हम संपूर्ण राशि एक साथ इकट्ठी करके राजस्थान राजपूत समाज में कथा के जरिए जो हमने दान इकट्ठा किया उनको समर्पण कर देंगे। बार इससे थोड़ी वेदना होगी। अभी जाता हूँ। हाँ, सच्ची बात है। तो चलो अपने बताने समय न लेता, एक बार जोर दीजिए, बोली दो कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की। मैं थाने शिवरो मारा गणपति देवा, अरे बजे नारा पार करने हारा जी मारा, बजे नारा पार करने हारा जी। सरस्वती मैया देवी शारदा शिवेरा, अरे जरनेला जायो रे जरनी अम्मी मारो लाले के वायो मोदी, अम्मी मारो लाले के वायो मोदी, मैं धन शिवरू मारा लागे लागदा। हाथी का लोले की हाथ नहीं आवे, हाथी का लोले की हाथ नहीं आवे, मुठिया में नहीं रे समावे जीवो मारी, मुठिया में नहीं समावे जी। मेरा शिव मारा गणपति देवा,
शोभा
नहीं। बोली गणपति गजानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे राधे। बोले जय श्री राम। अरे यहाँ तक नहीं, अयोध्या में पहुँचनी चाहिए आवाज। तो हमारे राम लला जल से जल कहते हैं, तो क्या कहना पड़ेगा? बोले जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्ये नमः। कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथपावनमध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यहाँ पर बैठे हुए सारे भक्तजनों को मेरा राधे राधे। तो कल हमने क्या श्रवण किया कि मीराबाई जी का विवाह हो गया, भोजराज जी की भी मृत्यु हो गई। एक तो मेड़ता में सबसे ज्यादा दाऊदरा जी और मेवाड़ में भोजराज जी, यह दोनों उनके भक्ति मार्ग में बड़ी मदद करते थे, परंतु वह भी नहीं रहे। अब अत्याचार करने के लिए कौन कौन आ गया? राणा जी, उदाबाई, नननबाई साहब। उदाबाई कौन? नननबाई साहब। कौन आया? ससुर जी। तो कहता है कि राधा कृष्ण को तो राम मिले, राधा कृष्ण को तो राम मिले, कृष्ण राधा को तो राहत दे दिया। मीरा कृष्ण को यानी कि मेरा कृष्ण, मीराबाई जी के जीवन चरित्र से हमें क्या सीख मिलती है कि मेरा कृष्ण कहना है। कैसा? मेरा कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे प्रभु ने कि कृष्ण कन्हैया ठाकुर जी सावरिया सेठ को कई लोग रणछोड़ नाम से बुलाया जाता है ना। कल हमने भजन गाया था ना, द्वारिकानो नाथ मारो राजा रणछोड़ छे, एनी मने मायण लगाड़ी रे। तो राजा रणछोड़ क्यों कहा जाता है? राजा रणछोड़ तो हमारे अयोध्या के रघुवंशी राजा मुचकुंद राजा थे, बड़े सम्राट। अरे युद्ध में तो मानो ही नहीं, सबको पराजित कर दे, ऐसे तो योद्धा थे वह। दूसरी ओर स्वर्ग लोक में युद्ध हो रहा था इंद्र और दैत्यों के बीच में। इंद्र का तो मत डर रहा है, अरे मैं हार गया तो मेरा स्वर्ग तो चला गया। इंद्र को तो ऐसे भी डर लगता ही है, क्योंकि प्रभु का नाम कोई भी चादर ले ले तो इंद्र की गद्दी हिल जाए। क्या? इंद्र की गद्दी हिल जाए। वो तो प्रभु की कृपा से, मतलब प्रभु की कृपा से स्वर्ग लोक के राजा है। तो इंद्र करे क्या? दैत्य की ओर से वह जीत नहीं सकते। तब गुरु जी ने कहा कि जाओ, अयोध्या के रघुवंशी राजा है मुचकुंद, उनके पास जाओ, वह तुम्हारी सहायता करेंगे युद्ध में। तुम पराजय नहीं होगे पर विजय प्राप्त करोगे। कहते ना कि कभी कभी दुख आता है ना, तो कहाँ जाना चाहिए? गुरु जी के पास। गुरु जी सही मार्ग दिखाए। कहते ना अज्ञान विध्वंस कोटि सुलिम समप्रभा, यानी कि करोड़ों सूर्य से भी बड़ा, यानी
अयोध्या में गया रघुवंशी राजा के पास, मुचकुंद के पास, कहा महाराज हमारे संग चलिए क्योंकि स्वर्ग लोग अब दैत्यों युद्ध करने के लिए आ रहे, हम नहीं जीत सकते, हमारी पराजय निश्चित है, हमें पता है। कल हमारे गुरुजी ने कहा है कि जाओ रघुवंशी राजा मुचकुंद के पास, जो बड़े सम्राट राजा है, जो हमारे प्रभु श्री राम के पूर्वज थे। उन्होंने कहा फिर ठीक है हम तो आएंगे। मुचकुंद राजा कहे परंतु मुझे वापस यहाँ पर छोड़ जाना। मुचकुंद राजा तो गए हमारे इंद्रदेव के संग, युद्ध हुआ, कई दिनों तक युद्ध हुआ। युद्ध में विजय प्राप्ति होती है, विजय प्राप्ति होती है। जैसे ही युद्ध पूर्ण हुआ मुचकुंद राजा ने कहा हमें हमारे अयोध्या में पहुंचा दीजिए। इंद्रदेव तो कुछ बोल नहीं रहे, क्यों? क्योंकि इंद्रदेव का स्वर्ग लोक का समय और पृथ्वी लोक का समय पूर्णतः अलग है। कहा हम आपको नहीं भेज सकते, क्यों? अरे मेरी अयोध्या में मुझे जाने दो। ये नहीं, क्योंकि आप जिस समय में आए थे वह समय और इस समय बड़ा फर्क है, तो क्या करें? आप तो जा नहीं सकते क्योंकि आपकी कई पीढ़ियां निकल चुकी है। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, परंतु मैंने कई दिनों तक युद्ध किया है, इसीलिए मैं थक चुका हूँ, मुझे कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ मैं आराम से सो सकूं, आराम कर सकूं। स्थान बता दिया इंद्रदेव जी ने। तो कहा वरदान दिया कि आपको जो भी उठाएगा या परेशान करेगा आपकी एक दृष्टि मात्र से वह भस्म हो जाएगा, वह भस्म हो जाएगा। मुचकुंद राजा भी चले गए आराम करने के लिए। वहीं दूसरी ओर कई वर्षों के पश्चात हमारे सावरिया से द्वारिकाधीश जरासंध नामक राक्षस का दुश्मन, समझ लीजिए कि उन्हें द्वारिकाधीश पसंद ही नहीं थे। हर बार युद्ध लड़ने के लिए आता, हर बार हार जाता, परंतु वो कैसा वापस आ जाता युद्ध लड़ने के लिए, हर बार हारता, हर बार आता। क्या करे? मुझसे बड़ी शर्म आ रही है। अरे मैं हर बार हार जाता हूँ, अरे एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार गया, परंतु द्वारिकाधीश से तो मैं हार ही जाता हूँ। तब उसे इसने सलाह दी कि कालीवन के पास जाओ, वह तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, कालीवन कौन? कालीवन ऋषि मुनि के पुत्र थे। एक तो ऋषि मुनि के पुत्र, परंतु उनका पालन पोषण यवनों के राजा करते हैं। कौन? यवनों के राजा, इसीलिए उसका नाम होता है काल यवन। एक तो ऋषि पुत्र था, इसीलिए उसे वरदान भी था। उसे वरदान था कि उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। तब क्या करे? वह जरासंध तो कालीवन की संग में लेकर आ गया युद्ध लड़ने के लिए। प्रभु विचार करे, अरे एक तो इसे वरदान प्राप्त हुआ है और एक तो ये ऋषि मुनि का पुत्र है, मार भी नहीं सकते, युद्ध भी नहीं कर सकते। तब हमारे प्रभु रण छोड़कर भागते, क्या रण छोड़कर भागते और पीछे पीछे वह दौड़ता है, कालीवन दौड़ता, कालीवन कहता है अरे ये कैसा राजा है, अरे ये कैसा राजा है जो अपनी प्रजा को छोड़कर भाग रहा है। तब क्या कहता है, तो रण छोड़ है, रण छोड़ है, रण छोड़। तब हमारे द्वारिकाधीश भी थोड़े ना कम थे, अरे कितने बोले, उन्होंने कह दिया तथास्तु तथास्तु तथास्तु। फिर तब से उनका नाम क्या पड़ता है? राजा रणछोड़। बोले राजा रणछोड़ की। पीछे पीछे दौड़ते उसी गुफा में हमारे द्वारिकाधीश पहुंच जाते। वहां पर कौन सोया था? आराम कौन कर रहा था? मुचकुंद राजा। अब उन पर अपना पीताम्बर उड़ा दिया और आप छुप गए। और पीछे से कालीवन आया। कालीवन ने देखा ये कैसा राजा है, सो रहा है, अरे कैसा राजा जो सो रहा है, प्रजा को छोड़कर ऐसी परिस्थिति में छोड़कर सो रहा है आराम से। उसे बड़ा क्रोध आया, ठोकर मारी, तुरंत मुचकुंद राजा उठ गए और उनकी एक दृष्टि मात्र से कालीवन की मृत्यु हो जाती है, वह भस्म होता जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसी प्रकार से कालीवन का भी
स्वीकार हो जाता है, तब से हमारे प्रभु सावरिया सेठ का नाम, द्वारिकाधीश का नाम रणछोड़ भगवान कहते हैं। बोले राजा रणछोड़ की तो कहते हैं कि प्रभु की पूजा ना करो, प्रभु की पूजा ना करो, प्रभु की भक्ति ना करो, कीर्तन ना करो, परंतु जिसका विवाह हो जाता है ना कन्या का, वो पति की सेवा कर ले तो उसे तो वैकुंठ से भी बड़ा दाम मिल जाता है। ऐसे हमारी माता अनसुया जी का डंका बजाता क्या, तो माता अनसुया ऐसे पति प्रतिव्रता धर्म को निभाते थे, अरे ऐसे पति प्रतिव्रता धर्म को जो पर निभा तक नहीं सकता था, ऐसा डंका वैकुंठ तक भी पहुंच गया, प्रशंसा पहुंच गई वहां तक। परंतु मैं तीनों देवियां कौन सी, ब्रह्माणी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, वह विचार करती मात्र वो मिली पति प्रतिव्रता धर्म निभाते। अब हमारे नारद जी भी कैसे, नारद जी अब कहते हैं, नारद जी जहाँ भी पहुँचते हैं क्या होता है, झगड़ा तो होता ही है, परंतु उन्हें कौन भेजता है, हमारे द्वारिकाधीश कार्य पूर्ण करने हेतु। कहते हैं कि अरे जब पहले पुत्र को रहने दिया था ना, तब भी हमारे कौन आ गए थे, नारद जी आ गए थे उसके पास। क्यों? क्योंकि उन्हें भी हमारे सावरिया सेठ के द्वारिकाधीश के दूत माने गए हैं। अरे नारद जी के दर्शन भी हो जाए ना, तो सावरिया सेठ की प्राप्ति हो जाए। पहले जो प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज, सब दोनों के गुरु कौन थे, नारद जी। फिर उन्हें द्वारिकाधीश हमारे सावरिया सेठ की प्राप्ति हुई थी। तीनों देवियां बैठी हुई है, बातचीत करे, नारद जी पहुंच गए। नारद जी कहीं भी जाते हैं तो क्या कहते, पहले श्रीमन्नारायण नारद जी ने कहा, अरे आपको पता नहीं कि पूरे विश्व में माता अनसुया जी का नाम बहुत ले जाया है। माता अनसुया जी बड़ा कठिन प्रतिव्रत धर्म निभाते, आपको पता नहीं, हम भी उनके गुणगान करते हैं। आप कौन है ये माता अनसुया जी? अरे मानो हिम्मत, बड़े कठिन प्रतिव्रत धर्म निभाते, उनका जैसा तो आप भी नहीं निभाते। अरे जैसी प्रसन्नता सुनी माता अनसुया जी की, क्रोध आता है तीनों देवियों को, अरे हमसे भी ज्यादा। नारद जी ने कहा, अभी तो आपसे भी ज्यादा है, अभी तो आपसे भी ज्यादा कठिन प्रतिव्रत धर्म निभाती है। बड़ा क्रोध आया, नारद जी तो चले गए, तीनों देवियों को बड़ा क्रोध आया हुआ है। तीनों देव आए, पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा, क्या अभी माता अनसुया जी का डंका बजा हुआ है कि वह कठिन प्रतिव्रत धर्म निभाती? हाँ, आपसे भी ज्यादा। और तो पति देव के मुख से सुना, पति देव से मुख से जैसे सुना तो पार्वती जी को क्रोध आया। दूसरी ओर लक्ष्मी जी ने कहा कि अभी क्या माता अनसुया जी का डंका बज रहा है? कहा आपसे भी ज्यादा। तीसरी ओर ब्रह्मा ने पूछा ब्रह्मा से, अरे आपसे भी ज्यादा। अरे तीनों देवों को बड़ा क्रोध आया, विचार किया, क्या कहा सुनिए, क्या आप तीनों जाइए अब पृथ्वी लोक पर परीक्षा लीजिए। अब तीनों प्रभु को तो पता था, तीनों देवों को तो पता था, परंतु क्या करे, देवियां मान ही नहीं रही ना। मैं पहले दिन कथा श्रवण की थी ना, जिद के आगे हार ना पड़ता है, कुछ भी हो जाए
तीनों देव पहुंचे। ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर माता अनसुया जी के कुटिया के बाहर आवाज लगाते रहे, भिक्षां देही। माता अनसुया जी बाहर आए, भीतर बुलाया, आसन दिया, फिर कहा आप भोजन लेके जल लेंगे। तब उन्होंने कहा माता अनसुया जी से कि आप जिस स्वरूप में पृथ्वी लोक पर आए थे उसी स्वरूप में भोजन कराए, क्योंकि हम तो वैरागी है। जैसे सुना तुरंत गए पतिदेव के पास। पतिदेव ने कहा अरे ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण नहीं है, वैरागी ब्राह्मण नहीं है। अरे ये तो तीनों देव आए हैं, तीनों देव जो तुम्हारी कठिन पातिव्रत धर्म की परीक्षा ले आए हैं। जल दिया कलश में और गए तीनों ऋषि मुनि के पास, ब्राह्मण के पास गए, जल छिड़का कि तीनों देव क्या बन जाते, छोटे छोटे बालक बन जाते और अपने कुटिया के बाद क्या करते थे, पालना बना देते। हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कोई जन्म नहीं लिया, तो ये क्या था, छोटे बालक होंगे। ब्रह्मा जी भी छोटे बालक, भोलेनाथ जी छोटे बालक बन गए। तो क्या माता अनसुया जी ने डाल दिया पालना। अनसुया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। छोटे बालक रोते और रोते तीनों बालक बन गए और झूलने में बुलाए, परंतु प्रभु क्या बालक बातें प्रभु करना चाहे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। मेरी आय वेद यहाँ तो नहीं मानना, मेरी आय वेद यहाँ कहीं नहीं मानना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अरे माता अनसुया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुया जी क्या कहते हैं, हमें इतने बड़े आए थे, मेरी परीक्षा
फंसे तीन देव पूछे कोई ना हाल ना झूल रहे तीन देव बन करके लाल ना झूल रहे तीन देव बन करके लाल अरे माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना झूल रहे तीन देव बन करके लाल अब मैं तीनों देवी इंतजार कर रही है। अरे पति देव आए क्यों नहीं, पति देव आए क्यों नहीं? सब वापस नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा आपको पता नहीं? नहीं नहीं, कब से गए आए नहीं। अरे आपके पति देव तो नीचे पृथ्वी लोक पर बालक बनकर रो रहे हैं। क्या कहे? किनारे दुखी होकर कुटिया पधारी। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी माता मोहे पति देव पीनती हमारी तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे अंगना तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे अंगना झूल रहे तीन देव बन करके लालना झूल रहे तीन देव बन करके लालना माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना तीन देव झूल रहे बन करके लालना तो इस प्रकार से माता अनुसुईया जी का डंका बजाता। अरे ऐसे कठिन प्रतिव्रत को धर्म को निभाते थे। ऐसे को कठिन पातिव्रत धर्म को वो निभाते थे। अरे जिनसे तो तीनों देवियां भी डर गई। तो सबसे ज्यादा क्या? पति की सेवा करना। अरे सामने अरे क्या कहते हैं कि प्रभु की सेवा ना करो तो चलेगा, प्रभु की सेवा ना करो तो चलेगा, पहले तो विवाह हो जाए तो पति देव की सेवा करना अवश्य करना। बोले तो से भगवान की ये जो दो गाड़ी का नंबर है GJ5RC 0230 और दूसरी गाड़ी CJ 0812 जिसकी भी गाड़ी हो थोड़ा साइड में ले लीजिए, बीच में खड़ी है। 0230 और 0812 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले राधा रानी की, राधे राधे। तो हमने कल क्या श्रवण किया था? माधवी का विवाह, माधवी मीराबाई का जन्म होता है। और मीराबाई जी का विवाह भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है। अब भक्ति मार्ग में मदद करने वाला कोई है ही नहीं। और विचार करे क्या कि अब तो मीराबाई जी को विष पिलाना पड़ेगा। अरे भविष्य तो माने ही को नहीं, विष लेना पड़ी। कह तो करो। वेद जी ने बुलाया। वेद जी ने क्यों? वेद जी माने यूं क्या हुआ कि हैं तो कि जहरीलो विष कटे, क्यों कि 10 फुट नीचे जमीन के नीचे हैं तो कि जहरीलो विष है। ऐसी बात है, तुरंत बुलाया सैनिक को बुलाया कि खुदवाई करो। खुदवाई करी, विष निकालो। वेद जी क्यों कना वास्ते ले रहा हो? यो मीरा रे वास्ते, भविष्य रे वास्ते, भविष्य रे वास्ते, मीरा बाई जी के वास्ते। अरे मीरा के लिए, अरे वो तो सावरिया की बहुत बड़ी प्रेमी है, भक्त है, उन्हें माने क्या विचार करो तुम। अरे मेवाड़ का विनाश हो जाएगा। अरे महाराज को क्रोध आता है। महाराज कहते हैं तुम मेरा कार्य कर
हमारे सामने भी बड़े ठाट से बैठते थे कि मीराबाई जी श्रृंगार बड़ा अच्छा करते थे। कहते ना थारो खूब सजो श्रृंगार ए मारा सावरिया सरकार। जो श्रृंगार मारा सांवरिया सरकार। मीराबाई जी अपना सावरिया में फूलों की श्रृंगार करता। आ राणा जी ने बात बताती क्यों कि फूलों में ले जाओ, फूलों की टोकरी में ले जाओ, फूलों की टोकरी में भिजवायो विष। मीराबाई जी તમે વિષ ને જેવો એક પિતા લગા ને પર ફૂલ આયા, ફૂલ ને જેરા ઉતાયા તો તમને કોઈ તો શાલિગ્રામ જીતા। અરે મીરાબાઈ जी कितना बड़ा। मीराबाई जी कहे अरे મને લાગ્યું મેં જ ભક્તું રાજ માં ના પડ્યો કે રાણજી ભક્તે અરે એના છુપ્યો ને ભક્તે ને શાલિગ્રામ ને બાર નિકાલ્યા કે ઠાकुर जी પાર દેવાડિયા કે ક્યો રે આવું પીઓ રાણાજી મારા શાલિગ્રામ કેરા મસ્ત એ ગોલ મોટો શાલિગ્રામ जी મેં મારા સાવરિયા પાર દેવાડ્યું વાતા કરી કે મારા સાવરિયો એકલો તો મુझे કોની આવે दूजोड़ बात का वास्ते आई क्या है वे शालिग्राम ने पूजा पाठ शुरू की थी है शुरू की तो दूजोड़ी और राणा जी विचार करेगा क्या संदेशो आवे संदेशो गयो मीराबाई जी कई मेरे मैं तो शालिग्राम जी आया उत्सव मनाया जाएगा। तुरंत दौड़ियो એને क्यों अरे राजा मुनो जल्दी मुनो कहीं कहियो अरे राजा कहियो था है कहियो अरे મને એવું લાગી રહ્યો कि क्या भविष्य क्या परम राम अरे भविष्य ने तो कहीं नहीं दियो अपना भविष्य ने कहीं नहीं दियो मीरा ने कहीं नहीं दियो और आज तो विष भेजो तो ने कहीं दियो शालिग्राम आपला एक पहला आपला वास्ते एक ही पितल की मूर्ति थी अबे कुजोड़ा गोल मोटो शालिग्राम है क्या बोले शालिग्राम की शालिग्राम जी की पूजा पाठ शुरू की थी। હવે રાણાજીના મન મે વ્યો રે કેમ ભવિષ્ય જેરોય કઈ ની ગયો વિશ્વય કઈ ની ગયો અરે રે વેદજીને બોલાયા આ બહુ કોની તો વિશ્વ મારા ભવિષ્ય કઈ ની ગયો તમારા ભવિષ્યને કઈ ની ગયો મીરાને કઈ ની ગયો એ મને તો ઠાક ની પર આ વિષ ઘણો ઝેરીલો તો અરે આ વિષને 10 કટોરા મે ડાલો પાછો નિકાલો ને દો કિસી દો एरो बीच ज़हरीलो पासो हुंगोई तो मृत्यु हो जावे। अरे एरी बात तो मारा भविष्य ने क्यों कही क्यों बात तो मने था कोनी क्योंकि यूं मिला क्या तो सावरिया बड़ी प्रेमी है सावरिया की भक्त है और वास्ते में कई देयो करी एरी बात है झूठ बोली रहा बच्चिया झूठ बोली रहा आ बीच में आप क्यों बेटी करे अरे प्रभु अरे महाराज माने नहीं पीवाड़ो महाराज माने नहीं पीवाड़ो अरे मैं नैने छोरा है नैने छोरी है अरे माने नहीं पीवाड़ो महाराज साहब तो झूठ बोलियो मारा भाभी से कहीं नहीं पियो हुई भी मन था पड़ेगा विष जहरीलो है कि नहीं है तो जबरदस्ती पीवाड़ियो अरे वे जी तो वटी परम नाम गया पा अरे पाछे थी पत्नी के गया पत्नी कहे अरे मारा पति देव ने कही दियो अरे नैना छोरा लोन क्या अरे अरे मारा पति देव ने क्यों ये करियो को नहीं अनवास गुनो क्यों गुनो किदो तो जहर पीवाड़ियो अरे आ जहर तो दुश्मन ने भी नहीं पीवाड़े एरो जहर मारा पति देव ने क्यों पीवाड़ियो अरे वो एरा रोया था अनवास से मैं सलाह दी थी कि मीराबाई पाड़े जाओ वाह गई उत्तर लाया प्रश्न लो कई वेला ज्ञान क्यों अरे मारा पति देव ने बिना गुनाहरो जहर पीवाड़ियो क्यों यूं करो कि मने कोई यूं क्यों कि आप जाओ मीरा ने पढ़े मैं आप पे पढ़ाई हूं कहीं करो आपको इलाज करो बोले राधे कई गयो कोनी कई करो पति देव की मृत्यु वेगी कई तो करो मैं नैना छोरा है नैना छोरी है
मारा पति अरे वेद जी तो इलाज करवाने હતા વેદ जी ઘણા હોય અને કઈ નહીં કરતો અને આવું કરો આપણે સાવરિયા ચરણામૃત લઈને આયા ચરણામૃત જ્યારે વેદ जी માટે છિડક્યો જ્યારે છિડકો ને વેદ जी તો એ ઉઠ્યા ને નાચો લાગે અરે રે 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 તો કઈ લો તે વિશ્વ કોઈ અસર કોઈ ગયો અને વેદ जी ઉઠ્યા હવે તો મહારાજ કહે તમે હાજુ જ કયો તો मैं आज क्यों तो क्या विश्व में कई कोनी आ तो खाली जली से अरे आप आने की यूज हैरान की दापा बाबी सा कह रहा है पहले तो जादू गरी था ना के देजी बड़ी फैला है तो करो गयो है भाई कई करो बाबी सा ने की करी करू दाना तो पड़ी है बाबी सा ने दाना पड़ी उदा भाई कहे यार क्या बाबी सा है केड़ा है मैं तो एक बार विचार कर लूं અને की करी ताना मारा बाप ने उतरे कोनी क्यों मैं विचार करना मार भाभी सेला मारी सेवा करेला आ तो मोनी सेवा करावी री काय दुकान पड़ी पांच जेरी है मीराबाई जी भी है वातावनी मीराबाई जी पर कोई असर कोनी भी कोई अत्याचार किया तब बुद्धाबाई ने विचारा अरे हाचा में कई प्रभु भक्तानी तो कोनी अरे मैं मरुला तुम्हारे नरक में नहीं ले अरे नरक में ले चला अरे मारे हरी पीड़ा सहन नहीं करनी तुरंत मीराबाई जी रे चरणों में गिर गया कि भाभी सा अरे आप जरा भाभी सा तो नसीब वाला ने मिले अरे मैंने क्षमा कर दो अरे भाभी सा आप बेकुट में जाओ तो मानी ले चलो उदाबाई तो पाछे पड़िया उदाबाई कहे मैंने मां मैंने क्षमा कर दो भाभी सा मैंने क्षमा कर दो अरे मारा पाड़े करी क्षमा मांगो अरे मारा सावरिया पाड़े मांगो भाभी सा जनता है मां विवाह पश्चात मारा भाई हाथे आया था तुलसी माला लेना आया था वह तुलसी माला मैंने पाची दो क्योंकि मैं उड़ियो तो कि तुलसी माला जना गले में वे बोले ठाकुर बोले सावरे तोड़ चलीने आवे जे आपे उणो के नहीं आपने उणो कि जो अमीर व्यक्ति वे मोटी मोटी नोट वे आपने कई को आपे कई को अरे आप थोड़ा मोटो व्यक्ति है अरे आने सुना पिया देखो 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 ये क्यों अरे तो यूं सावरिया कई के अरे जन भक्ता रे गले में तुलसी री माला वेने अरे पिया पाप की दवे ने यमराज जी आवे यमराज जी तो हाथ जोड़े ने दौड़े पासा अरे रे आने गले तुलसी री माला है अरे प्रभु तो अरे अन्य सजा देवान जावला तो प्रभु तो आपनी सजा देलेला अरे जल्दी जल्दी दौड़ो अरे भक्त रे तुलसी री माला जेरी गले में गया ने यमराज जी तो दौड़े दौड़ो दौड़ो जल्दी दौड़ो तुलसी री माला अतो महत्व है जन टाइम उठावाई क्यों अरे भाभी सा मैंने क्षमा करो अरे आभूषण नहीं अरे वस्त्र नहीं अरे संसार में है मोटी मोटी तुलसी माला